चालू ही था पहले भी। Okay, so good morning everyone, and let's continue with your probability fourth part. See, fourth part, which is your exercise 8.4, and it is related with the new type which is known as Poisson distribution. Whatever you read, Poisson, it's okay. Verbally तो कोई issue है ही नहीं क्योंकि आपका writing exam है, तो वो verbal में it's applicable. So Poisson distribution. Before this exercise, we discussed binomial distribution. Now we have one more confusion. Sir, how can we identify? Our question is Poisson distribution or our question is binomial distribution. See, in your question it is clearly identified. आपके कोई भी क्वेश्चन में Poisson distribution always दिया होगा. तो अगर मेरे क्वेश्चन में Poisson डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो वो अंडरस्टूड है कि Poisson का क्वेश्चन है. अगर नहीं दिया है कुछ भी तो वन कैन अंडरस्टूड कि वो कौन सा क्वेश्चन होगा आपके बाइनोमियल, जहां पे आपको P एंड Q फाइंड करना है. दैट इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. सी, दिस इज द डिफरेंट पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. व्हेन x follow the Poisson distribution with the parameter m. What is m here? M either mean is also known as average. Ultimately both are same. M for average or mean. X follow the Poisson distribution m. What is the formula of Poisson distribution? When x is equals to e raised to minus m. E आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड वी वेरी वेल नो. आपके डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन में हर जगह पे e लिमिट से कंटिन्यू होते आ रहे हैं. तो e is an exponential element. E raised to minus m, m raised to x upon x factorials. Factorials, back calculation till 1. X is equal, see, it's a probability of x is equals to e raised to minus m. Hello. E raised to minus m, m raised to x upon x factorial. What is the formula of mean? E raised to x is equals to m. Variance of x is equals to m. ये आप बोलेंगे यस. आपका यहाँ जो एवरेज फाइंड होगा ना m, दो सिचुएशन होगा. आइदर आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी एवरेज दिया होगा, इट्स अ गिवन, और वी कैन फाइंड एवरेज ऑल्सो. एवरेज का एवरेज का मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, बट वी कैन अंडरस्टूड कि एवरेज कैसे फाइंड होता है. टोटल डिवाइड बाय नंबर. दैट इज अ सिंपल कैलकुलेशन फॉर average. So your e of x, variance of x, ultimately both are same m. If you want m for mean, earlier हमने बाइनोमियल में भी यूज किया था. मीन का फॉर्मूला क्या है? np. अब आपके Poisson में डिफरेंट क्या होगा? तो n इज वेरी लार्ज, np इज वेरी स्मॉल. अभी मैं एक जस्ट स्मॉल आपको डिफरेंशिएट डिस्कस कर रहा हूं कि Poisson डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल में क्या डिफरेंस होता है. एक स्टेटमेंट में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, Poisson डिस्ट्रीब्यूशन, n इज स्मॉल, n इज लार्ज. अभी इस पे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि n इज लार्ज से क्या होता है कि यहां पे आपको एक्सट्रीम नंबर नहीं मिलता है. सपोज वी आर थ्रोइंग 20 डाइस, तो 20 डाइस इज एक्सट्रीम हो गया. तो मेरे अगर मैं लिखता हूं कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा. क्यों? 10, 11, 12, 13 कहां तक जाना होगा? 20. तो यहां आप बाइनोमियल वाला सिस्टम नहीं लिख सकते. बट बाइनोमियल के कोई भी क्वेश्चन में n ऑलवेज क्या होता था? स्मॉल. तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है कि जहां पे n स्मॉल है वो आपका कौन सा मेथड यूज होगा? बाइनोमियल. और n अगर लार्ज है तो कौन सा मेथड यूज होगा? Poisson. तो दूसरा एक एडवांटेज ये होगा कि ये सिचुएशन आएगा ही नहीं, बिकॉज आपके क्वेश्चन के Poisson पार्ट में क्लियरली दिया होगा बाय यूजिंग विच डिस्ट्रीब्यूशन. Understood this? So at present what we require this formula. Okay, so this is the actual part for your exercise 8.4. Okay, with the help of this formula
we can solve any question of exercise. Understood this? Okay. So first of all, you write down this formula, then we can start with the question. Now your exercise 8.4 question number 1. If X has Poisson distribution with M is equals to 1, find the probability of X less than or equals to 1. See on the page number 152, X has Poisson distribution. See, X follows Poisson distribution with M is equals to 1. And what is your required probability? Your required probability of X, which is less than or equals to 1. X का required क्या है? Less than or equals to 1. Listen. अभी सबसे important part बेटा ये होगा कि listen. बाइनोमियल का क्वेश्चन है कि पॉइसन का? अभी अब ये सर कैसे पता चला? लिखा है ना, इतना तो क्लियरली दिया है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फिर वो क्वेश्चन आएगा नहीं कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है. और m is equals to already 1. X follow the Poisson distribution, m is equals to 1. By the Poisson distribution, e raised to minus m, m raised to x upon x factorial. E as a constant, e is always e. E raised to minus m, m is here 1. What is m? 1. X upon x factorial. Another one advantage. How can we find e raised to minus m? Listen. जनरली जैसे आपके लोगरिथम के वैल्यूज का 0 से लेकर 100 तक के टेबल्स प्रिंटेड होता है, मतलब वो आपको कोई बायट नहीं करना है कि आप कैसे फाइंड करेंगे, वो ऑलरेडी प्रिंट पार्ट हुआ है कि टेबल्स आपको प्रोवाइड करते हो, टेबल्स के हेल्प से आप लोगरिथम फाइंड कर सकते हो. बट अभी यहाँ पे आपका वो भी जैसे ई रेज टू समथिंग है ना, उसके भी वैल्यूज के टेबल्स, बट एज पर द बोर्ड्स एग्जामिनेशन दैट टेबल्स एंड पेजेस वो सब प्रोवाइड करना इट्स रादर डिफिकल्ट. तो यहाँ पे एडवांटेज क्या होगा, ई रेज टू माइनस 1 इज ऑलरेडी गिवन, इट इज योर पार्ट ऑफ क्वेश्चन. क्या दिया है? 0.3678 0.3678 1 raised to x upon x. अभी और एक रिवर्स पार्ट हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे. रिवर्स देखो, सपोज कि एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन थोड़ा भी डिफरेंट आया जहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए कि सर ये एम मालूम ही नहीं किया कि एम कैसे फाइंड करें, तो वी कैन गो रिवर्स. कैसे पता? ई रेस टू का जो वैल्यू दिया होगा आपके क्वेश्चन में, ई रेस टू माइनस 1 लिखा है देखो क्वेश्चन में, तो माइनस 1, तो 1 क्या इंडिकेट कर रहा है? मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन आपने रीड नहीं भी किया ना, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 में एम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 में एम 1.5. तो आपने तो क्वेश्चन भी रीड नहीं किया, फिर भी आपको एम मालूम गिर गया. क्यों? हम तो रिवर्स गए. जो गिवन है, गिवन में भी ई रेस टू जो पावर है वो ऑब्वियसली पावर क्या होगा? एम. मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में आपका एम क्या होगा? 5. माइनस तो फॉर्मूला का पार्ट है, एम क्या होगा? 5. मतलब एम फाइंड करना तो इजी हो गया. अंडरस्टूड कि एम का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया. कैसे? डायरेक्ट गिवन में से मिल जाएगा. ओके. और ये अपना आपका एक स्टैंडर्ड पार्ट हो गया. आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू 1. See, x less than or equals to 1. If you told sir I don't want to go lesser part, I want to go upper part. Upper part मतलब क्या? 1 से greater मुझे जाना है. Suppose 1 से lesser आपको मालूम भी जाएगा क्या आएगा? x is equals to 0 और 1 is there. Only less than होगा तो 0. Equals to भी है तो x is equals to 1 also. Okay. One more thing. अगर मैं सेकेंड पार्ट समझ में आता है ना, 1 से लेसर आ गया 0 1, क्योंकि लेसर ही दिया था.
बट अगर मैं ग्रेटर सोचूं भी तो कितना आ सकता है? 2. 1 से ग्रेटर क्या क्या आ सकता है? 2, 3, 4 अप टू अप टू वाला आपके पार्ट में है नहीं. उसका रीजन है बेटा, मैंने जस्ट थियरी में आपसे डिस्कस किया कि इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन योर एम, यानी एम है, एम नंबर्स आर वेरी लार्ज, तो आपको अपर लिमिट मिलेगा ही नहीं, लेसर में आप आ सकते हो. अभी मेरे पास ऑलरेडी 0 है, 0.3678 1/0 अपॉन 0 फैक्टोरियल एक्स के प्लेस पे 3678 1 एक्स के प्लेस पे 1. एक मिनट, समझ में आना क्या चल रहा है? ये आपने बिगिनिंग में बाइनोमियल भी अटेंड किया होगा तो आपको पता है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही है, बट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट न्यूमेरिकल बन गया. अब मेरे जितने सब क्वेश्चन है इसको हम कंटिन्यू करेंगे. प्रोबेबिलिटीज ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1, प्रोबेबिलिटीज ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1. इसको जब मैं मल्टीप्लिकेशन के पार्ट में यूज करूंगा 3, 6, 7, 8 1/0 comes to 1, 0 फैक्टोरियल comes to 1. प्रोबेबिलिटी के एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कोई भी पार्ट में आपको 0 आंसर फाइंड नहीं होता. प्लस 1/1 and 1 factor is also 1. तो योर फाइनलाइज आंसर x, ये दोनों को आपको ऐड करना है. मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा 3678 3678 0 पॉइंट. चेक कर लेना, मेरा मैथ्स वीक है, आपका पता नहीं. अंडरस्टूड दिस? मतलब आपको तो ये वैल्यूज का तो कैलकुलेशन इजी हो गया. डिटेल्स आपको ऑलरेडी दिया होगा, सिर्फ आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी को यूज करना है. अंडरस्टूड दिस? सेकेंड क्वेश्चन, if x follow the Poisson distribution with 1.2, ये Poisson distribution का 1.2 मीन्स यहाँ आपका m क्या आएगा? 1.2. ओके, एंड I think so it's something like that कि 1/2 is there. Okay, printing error रहेगा. So if it is 1/2, then it directly comes to 0.5. Okay, तो ये आपका e raised to something जो है ना पावर में वो मैच होगा. It's not 1.2, it's a 1/2. So find the probability of x is equals to 3. Find the probability of x is equals to 3. Okay, ये e raised to 0.05, 0.5 raised to x. What is e raised to 0.5? 0.065. And the value of 6.6065. Okay, 0.5 raised to x upon x, and it's a given. तो वो आपसी बोर्ड्स में भी ये आपका गिवन पार्ट ही रहेगा, तो वो आपको टेंशन नहीं है. एंड नाउ व्हाट वी रिक्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 3. सो योर क्वेश्चन ऑफ x 0.6065, m is also 0.5 power x. Okay, x is equals to 3.6065, 0.5. What is x? 3 upon 3 factorial. 6065.5 raised to 3. 5 cube 555 125. And 3 factorial 3 2 1. See
हाउ कैन वी कैलकुलेट एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, दैट इज द डिफरेंट पार्ट. आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करके वॉट एवर इज द आपके लिए जो इजीएस्ट पार्ट होगा आप अप्लाई कर लो. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 3, ये 0.6065 डिवाइड बाय 6. 6065 को 6 के साथ डिवाइड करके 0.125 से मल्टीप्लाई. Algebraic calculation you can manage, right? And whatever is the answer is your final answer. समझ में आया? इसे देखो, पॉइसन का क्वेश्चन है वो तो गिवन है. फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर, e raised to 0.5 माइनस तो आपके पार्ट ऑफ फॉर्मूला है. e raised to minus 0.5 इट इज ऑल्सो गिवन, वो भी आपके गिवन पार्ट में. तो आपको सिर्फ क्या करना है, जितनी भी गिवन वैल्यूज है उसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके x का 3 फाइंड करना था, तो 3 आपने पुट कर दिया एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर. अंडरस्टूड दिस? ओके, प्लीज राइट डाउन दिस. Now question number 3. If x has Poisson distribution with the parameter m and underline the word Poisson distribution, मतलब कि this question is directly given as a Poisson distribution and x follow the Poisson distribution with m, given that probability of x is equals to 2 equals to probability of x is equals to 3, then find the probability of x greater than or equals to 2. Now listen, if you want probability, आपका जो required probability है x greater than or equals to 2. Okay, from this part to this part, x is greater than or equals to 2. But पॉइसन के फॉर्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, a. अब ये क्वेश्चन में m क्या हो सकता है, हाँ, वो आपने स्मार्टली फाइंड कर लिया. e raised to minus 3 is given, so automatically understood के m is absolutely 3. But वहां पे आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड m is 3? तो वहां पे थोड़ी एक्सप्लेन करते बैठेंगे कि इट इज गिवन इन द ब्रैकेट e raised to minus 3, so we directly understood m is 3. नहीं, तो वहां पे आपको m फाइंड करना है. देखो कैसे, दिस both probability we are given e raised to minus m raised to x upon x factorial, e raised to minus m raised to x upon x. m is missing और e तो ऐसे भी ओनली e एग्जिस्ट करता है, इनटू m मिसिंग है, x स्क्वायर है अपॉन 2 फैक्टोरियल e raised to minus m क्यूब 3 फैक्टोरियल, जो जनरली आप लिखते हो वैसे. अगर मैं इसको लेफ्ट एंड राइट का शिफ्टिंग दूं, e raised to minus m कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे आएगा m स्क्वायर अपॉन 2 into 1, m cube अपॉन 3 to 1, 3 to 1, 2 into 1, m cube. अल्जेब्रिक पार्ट यूज हुआ है. अब सर डायरेक्ट भी आप काउंट करो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो अगर मैं इसको, ये m cube एंड m square कैंसल, m. So finally we got the value of m is 3. चलिए हम लोग को पहले ही मालूम था, but for scoring and presenting the method we have to use this formula. And see sometimes ये भी होगा कि लोअर क्वेश्चन में आया, MCQs वाले पार्ट में आया, तो वहां पे m आपके पास कंपल्सरी नहीं होगा. अगर यहाँ पे आंसर स्टॉप हो रहा है, ये है ही नहीं समझो, दे आस्क ओनली फाइंड m, तो ब्रैकेट नहीं मिलेगा ना, ये तो आपके पास वो ब्रैकेट होगा ही नहीं. ओके, तो m इज इक्वल्स टू 3. अब एक स्टेप आगे, ये मेरा प्रोबेबिलिटी है, बट ये डायरेक्टली यूज कर सकते हो क्या? नहीं, ये फाइंड करने के पहले आपको बाइनोमियल पॉइसन का फॉर्मूला यूज करना होगा.
Poisson distribution e raised to minus 3 raised to x upon x factorial. What is e raised to minus 3? It's a given? Yes. 0.0497. 0497. 3 raised to x upon x. And what is your required question? Probabilities of x greater than or equals to 2. Probabilities of x greater than or equals to 2. अगर मैं इसको genuinely solve भी करूँ समझो तो कितना आएगा? 2 and greater than 2 and solve with the values 2 and greater than 2 में क्या क्या आएगा? 2 3 4 5 up to है नहीं लिमिट. मतलब मैं अगर इसको ही कंटिन्यू करूँ तो ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं. देखो क्या आपका एक्सपांड है, मतलब लोएस्ट टू हाईएस्ट चांसेस कौन से होते पता है ना? लोएस्ट टू हाईएस्ट चांसेस क्या होंगे? यहाँ तो एंड है ही नहीं. अब मुझे कौन सा लेना है? 2 और ग्रेटर देन 2. तो 2 इंक्लूड होगा? यस. ये मुझे लेके आना है, ये वाला पार्ट. 2 एंड ग्रेटर देन 2 मतलब 2 3 4. अरे कितना एक्सटेंड करेंगे मालूम ही नहीं है. 2 3 4 तो है. अब उसका तो रिवर्स पार्ट आपको पता है ना क्या करना है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2. अभी यहाँ पे इक्वल टू 2 नहीं आएगा. सी जिसने भी बाइनोमियल के लेक्चर्स अटेंड किए दे अंडरस्टूड. नहीं किए तो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, यू कैन रिफर. यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल्स टू होगा ना तो यहाँ नहीं आएगा. यहाँ अगर इक्वल्स टू नहीं होता तो यहाँ पे आपको लिखना है. तो ये तो ऑलरेडी है, मतलब मेरा 2 तो ऑलरेडी वो साइड में ही है. तो आपको 1 में से x 0 x 1 लेना है. x इक्वल्स टू 0.0497 3 raised to 0 upon 0 factorial. 0497 into 3 raised to 1 upon 1 minus 0.0497 into 1 upon 1 plus 0.0497 into 1 upon 1. ये तो एज इट इज ही है ना बेटा, क्योंकि 1 कैलकुलेट करेंगे तो सेम चलेगा. 1 minus 0497 आपको ऐड करना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1 में से जो भी लेस होगा वो आपका आंसर. समझ में आया क्या करना है? अंडरस्टूड दिस? ओके, कॉपी कर लो. मेनली आपको क्या करना था, एम जो फाइंड करना है ना, इसको सेपरेट समझना. ये डायरेक्ट वो आप माइंड में मत रखना कि अरे ई रेस टू दिया था तो हमने ले लिया उसको. बिकॉज इन सब्जेक्टिव पार्ट ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाइज इफ दे आस्क ओनली एम तो आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि गिवन प्रोबेबिलिटी के हेल्प से हमने एम कैसे फाइंड की. अंडरस्टूड? ओके, कॉपी कर लो. सो विद द हेल्प ऑफ 3 raised to 0 and 0 factorial is 1 1. ये आपका 3 raised to 1 3 and 1 factorial is always 1. तो ये 3 से मल्टीप्लाई ये दोनों को ऐड करना है एंड ये जो लेस होके आंसर आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर. ओके,
the number of complaints, question number 4, the number of complaints which a bank manager receives per day follow a Poisson distribution with the parameter m is equals to 4. Now listen, this m1, see we can understood m as a average, और यहाँ का जो अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो एवरी डे बैंक मैनेजर को नंबर ऑफ कंप्लेंट्स जो मिलता है कितना मिलता है 4. तो ये 4 एक्चुअल में क्या हो गया आपका एवरेज. देन द प्रोबेबिलिटी दैट द मैनेजर रिसीव्स, देयर आर 3 सब क्वेश्चन. व्हाट इज द सब क्वेश्चन 1? ओनली 2 कंप्लेंट्स. सेकेंड, at most 2 complaints, okay, and e raised to minus 4 is also given. Now listen, see in this question 4, the number of complaints bank manager receives follow the Poisson distribution. X is equals to number of complaints, X follow the Poisson distribution, m is equals to 4 by Poisson distribution. दूसरा एक चीज, ये अकाउंटिंग सॉल्यूशन के जैसा कोई फॉर्मेट नहीं होता है. जितने अलग अलग लेक्चरर्स को आप मिलेंगे हर एक का थोड़ा राइटिंग डिफरेंस रहेगा. सी मेनली मैथ्स 1 तो ठीक है, 2 में प्रॉब्लम क्या होता है पता है, आपका जो स्टेटमेंट वाला कंफ्यूजन है ना वो बहुत रिजिड माइंड है. लाइक सर वो स्टेटमेंट्स ही नहीं पता चलते क्या लिख रहे हैं. तो गो नेचुरली एज पर द क्वेश्चन, आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप लिख सकते हो. ऐसा नहीं कि मैंने ये लिखा है एक्स इज, इट्स ओके. आपका जो पर्पस है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का और m इज इक्वल्स टू 4 है ऑलरेडी यहाँ पे, m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल e रेज टू 4 रेज टू x factorial e raised to, what is e raised to minus 4? 0.0183 0.0183 4 power x. Okay, now our sub questions. First, probability of, see only 2 complaints, only complaints. If it is only 2 complaints, so x is equals to 2. क्योंकि आपने x ऑलरेडी अज्यूम कर लिया है. What is your x?